Jai Hind student, welcome to biology class. So as you all know, we have already started the chapter Kingdom Plantae of class 11th, and in that we have discussed the divisions that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperm. Now today we will be discussing about Angiosperm. So as you all know, both the Gymnosperm and Angiosperm, they come under दे ऑल इंक्लूड हायर प्लांट्स. ठीक है, जो भी एडवांस्ड या हायर प्लांट्स हैं वो दोनों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं. बट देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. जिम्नोस्पर्म में जो है वो जो है सीड्स नेकेड होते हैं. दैट मीन्स जो ओव्यूल्स हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ना पहले ना बाद में they have the naked seeds. But in case of angiosperm, the pollen grains and ovules, they are developed in a specialized structures called flower. ओके इसीलिए जिम्नोस्पर्म को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है एंड एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. सो हेयर सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं. दे आर नॉट नेकेड, दे आर नॉट ओपन. Okay, so this is the major difference between angiosperm and gymnosperm. Now this angiosperm is divided into two classes, that is dicotyledons and monocotyledons. So dicotyledon, as the name suggests, di means hota hai two, cotyledon seeds. So the seeds which have two leaves, or you can say, or two cotyledons होते हैं. Okay, टू cotyledons अगर हैं तो it is known as dicotyledon seed. Like you have seen gram, you have seen pea. Okay, तो इसको हम open करते हैं तो हमें टू cotyledons दिखते हैं. Okay, so such seeds are termed as dicotyledon. Now monocotyledons contain only one cotyledon. For example, you all have seen wheat, okay, then rice, then maize. ओके उसमें क्या होता है, सीड्स जो हैं एक ही होता है सीड. ओके सो इट इज़ मोनोकोटिलेडन. ओके नाउ कमिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ओके क्योंकि एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. नाउ फ्लावर्स जो हैं फ्लावर्स कंटेन मेल सेक्स हार्मोन, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन. as you all know, and stamen it has two parts, that is anther and filament. now anthers contain pollen grains. anthers के अंदर ही pollen grains होते हैं. now these जो anthers हैं वो bilobed structure होता है. okay, and it contain pollen grains जो कि pollination में help करते हैं. now filament जो है it is a slender thread like structure होता है जिसके top पे anther present होता है. okay, and they together form stamen. now coming to the female sex organ. the female sex organ in case of angiosperm is pistil, and this pistil contain three parts, that is style, stigma and ovary. you all have already studied about this, so it's just a type of revision ताकि आपकी जो memory है वो refresh हो जाए. okay, it has three parts. Stigma is the top part of the pistil, and it is also a lobed structure. lobed होता है, 2 lobed, 3 lobed, 4 lobed, 5 lobed हो सकता है, and it is sticky in nature. sticky क्यों होता है? because when the pollen grains are released from anther, they stick on stigma only, so that's why it is sticky. okay, then this stigma it is continued to into a long tube like structure that is known as style. now this style is long tube like structure, and what happen when the when the pollen grains they stick on the stigma, so then they start germination. so germination जब pollen करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? pollen tube. and this pollen tube move through the स्टाइल, वो स्टाइल से ही मूव होके जाता है ओवरी तक. ओके, कंटेनिंग टू मेल गैमीट्स. नाउ द बेस swollen पार्ट ऑफ द पिस्टल इज नोन एज ओवरी विच कंटेन ओव्यूल्स. ओके, और ओव्यूल्स ही जो हैं वो सीड्स बनाते हैं लेटर, एंड ओवरी चेंज इनटू अ फ्रूट. नाउ ये जो ये जो pollen grains हैं, नाउ they stick on the stigma by the process of pollination. okay, pollination होता है, and there are different agents of pollination which help in
which help in the this pollination. For example, insects, air, okay, water, these are the few pollinating agents जिनके थ्रू जो है pollen grains जो हैं वो स्टिग्मा तक आते हैं, and then they stick on the stigma and pollination occur. Now, ovary contain one or many ovules, so that is not key, it's not fixed depending on the plant. The ovary can contain one ovule also, and it contains more than one also. Now this ovule, it contain highly reduced gametophyte. इसी ओव्यूल के अंदर जो है हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है, ओके, दैट इज डिपेंडेंट होता है, एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक. इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक. ओके, सो द हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक. अब इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक में मियोसिस होती है. जो आपका रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है, इसमें मियोसिस होती है, दैट इज़ योर रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो सैक है वो हेप्लॉइड हो जाता है. ओके, हेप्लॉइड होता है बिकॉज एज यू ऑल नो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स अगर गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, तो गैमीट्स का हेप्लॉइड होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इसलिए दोनों ही आपके मेल ऑर्गन है और जो फीमेल ऑर्गन हुआ, आपका गैमीट हुआ, दोनों ही हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों ही मियोसिस के बाद बनते हैं, एंड देन दे फ्यूज़ टू फॉर्म अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ओके, नाउ ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक जो है, इट कंटेन 3 सेल्ड एग एपरेटस. ओके, 3 सेल्ड एग. इस एम्ब्रियो सैक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओके, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12, डिटेल में आप पढ़ोगे, बट हेयर ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू. ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एग एपरेटस. नाउ यू कैन सी, आई एम गोइंग टू शो यू द फिगर that you can see. Okay, this, okay, now here you can see this is a embryo sac, और इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, एंड हेयर यू कैन सी 2 सेल स्टेज आती है, फिर 2 से 4 सेल स्टेज बनती है, फिर 8 सेल स्टेज बनती है. अब ये जो 8 सेल स्टेज होती है, ये जो है मीन्स 8 न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं. ये अपने आप को क्या करते हैं? ओरिएंट करते हैं. नाउ ये जो है एम्ब्रियो सैक में लोअर रीजन होता है, उसको बोलते हैं चैलाज़र रीजन, और जो अपर रीजन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन. नाउ जो लोअर रीजन होता है, जो अपर रीजन होता है, माइक्रोपाइलर रीजन, वहाँ पे एग एपरेटस प्रेजेंट होता है. ओके, और ये एग एपरेटस जो है वो 3 सेल्ड होता है, मीन्स 3 सेल से मिलके बनता है, जिसमें से 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड, एंड द सेंटर सेल इज नोन एज एग सेल, दैट यू कैन सी इन द फिगर. ओके, और उसके बाद एक सेल अब बच गया इन 4 में से. नाउ जो लोअर एंड पे 4 सेल्स प्रेजेंट है, उनमें से 3 सेल्स तो एंटीपोडल्स बना देते हैं. ओके, और एक सेल उसमें भी बच जाता है. नाउ दीज 2 सेल्स दे कम इन द सेंटर, ये दोनों सेंटर पे आ जाते हैं और ये बना देते हैं पोलर न्यूक्लियाई. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. ओके, हम एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं. सो एम्ब्रियो सैक कंटेन 3 सेल्ड एग एपरेटस, 1 egg cell and 2 synergids. These together they form egg apparatus, और साथ में 3 antipodals and 2 polar nuclei. So together अगर हम बात करें तो ये 8 celled structure होता है. ओके, 8 celled and 8 nucleate structure होता है. नाउ ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, नाउ व्हाट हैपेंड कि जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन जो है, पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करना शुरू करती है, और वो जो है उसमें भी मियोसिस होता है, और जो है 2 मेल गैमीट्स बनते हैं. अब ये मेल गैमीट्स जो हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? एग एपरेटस के पास पहुँचते हैं. नाउ इस एग एपरेटस में 3 सेल्स हैं, सेंटर का है एग सेल एंड साइड के 2 सिनर्जिड्स हैं. तो ये जो है ये वहाँ से एंटर करता है एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस जो है वो एक एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है. ओके, टू फॉर्म अ जाइगोट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, नाउ अब व्हाट हैपन, ये सिनर्जिड्स फिर क्या करते हैं? सिनर्जिड्स जो है गाइड करते हैं पॉलन, मेल गैमीट को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि वेयर दे हैव टू गो.
ओके, ये इनका काम होता है। तो अब यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब जो बीच के दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक में, द टू पोलर न्यूक्लियस, दे फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर पॉलिनेशन, द pollen grow to form pollen tube containing two male gamete. This we have already discussed. इसमें से एक जो है एक्सेल के साथ फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, दोनों एक ही टर्म है। द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग सेल इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। नाउ अब क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमीट है, द सेकेंड मेल गैमीट, इट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो बीच के जो दो पोलर न्यूक्लियस थे उसके साथ ये जो सेकेंड मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करके ये अब क्या हो गया, यहाँ तीन तीन न्यूक्लियस इकट्ठा हो गए, तीन न्यूक्लियस में फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया। फर्स्ट जो फ्यूजन हुआ उसको हमने सिनगैमी कहा, और सेकेंड फ्यूजन हुआ उसको हमने नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन। अब जब व्हेन दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद द अदर मेल गैमीट, देन व्हाट हैपन, द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म्ड। ओके, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर PEN। ओके, और जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। दिस यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपको टर्म्स PEN एंड PEC आपको मिलेंगे। सो दिस न्यूक्लियस इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ अब आपने देखा कि यहाँ पे दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए ये हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। दिस यू नीड टू रिमेंबर, एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हमने इतने सारे डिविजन्स पढ़े, किसी में ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी नहीं थी, बट एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। क्योंकि दो बार फ्यूजन हुआ, एक बार सिनगैमी हुआ, जाइगोट बना, एंड नेक्स्ट ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना ट्रिपल फ्यूजन से। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दे टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सो यू हैव टू एक्सप्लेन सिनगैमी ऑल्सो एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑल्सो, आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करना होगा इसमें। ओके, अब क्या होता है, ये जो जाइगोट है अब ये एम्ब्रियो बनाता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। ओके, और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एंड दिस PEN फॉर्म एंडोस्पर्म, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ओके, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा बेटा, माइटोटिक डिवीजन होगा। मीन जाइगोट जो है डिवाइड करके अपने सेल्स को इंक्रीज करेगा। ओके, और ये एम्ब्रियो बनाएगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म जो है पहले बनेगा और एम्ब्रियो है बाद में बनेगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म को पहले बनना होता है। सो एंडोस्पर्म फॉर्म अ लिटिल बिट बिफोर देन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं। Okay, now what happen, this embryo starts formation. Now जो synergids होते हैं और antipodals होते हैं, they degenerate, उनका कोई काम नहीं रहता है। वो जैसे ही एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं दे डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन। एंड फाइनली दिस ओव्यूल फॉर्म सीड्स एंड ओवरी फॉर्म fruit. Okay, so in this way the fertilization is completed in case of angiosperm. So here in angiosperm double fertilization is very important. This is asked in exam, okay, in angiosperm. Now okay, you can see this figure I have shown you, ये embryo है। ओके, एंड एम्ब्रियो में और यू कैन से कि ये जो है ये आपका एंडोस्पर्म है। ठीक है, एंडोस्पर्म में डिवीजन स्टार्ट होता है 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड। ओके, एंड देन ये एम्ब्रियो नहीं होगा बेटा, दिस इज़ रॉन्ग, ये आपका होगा एंडोस्पर्म। ओके, तो इसमें डिवीजन होगा
और जब 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, ओके 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, तब ये 8 सेल जो है आपस में, इसमें न्यूक्लियस जो है ये जो है अपनी पोजीशन जो है ये चेंज करता है। ओके, ये जो ये आप ये कह सकते हो, ये सब कुछ ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओके, ओवरी के अंदर, सॉरी आपका जो ओवरी है उसके अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही ये सारा चेंजेस होता है। ठीक है, और ये जो सब चेंजेस होते हैं, ओके, ये जो आपका क्योंकि जब ओव्यूल में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में से ही जो एक लार्ज सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, यही मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। ओके, सो हेयर इट इज़ नॉट एम्ब्रियो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है मेगास्पोर मदर सेल है, या फिर हम इसको एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। ठीक है, पूरा एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सो ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में डिवीजन होगा। ओके, और ये जो है 2 सेल्ड बनेगा, फिर 4 सेल्ड बनेगा, फिर 8 सेल। 8 सेल्ड का इस तरह ओरिएंटेशन होगा, जहाँ पे सिनर्जिस और एक्सेल हैं उस ऊपर टॉप पे होंगे, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। नीचे लोअर रीजन जो बेसल रीजन जहाँ एंटीपोडल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं चैलाज़र रीजन। और फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना। ओके, और ये बना आपका ग्रीन कलर से है, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, और जो एंटीपोडल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, सो ये जो है आपका ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ओके, एंड उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ figure. So this is about the angiosperm. So with this your the last division of your this kingdom Plantae is over. So hope you all have understood it. Okay, so this is all for now. Thank you everybody.